Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much, everybody, for joining me once again. Saj Sadek here for PakPassion.net, bringing you another exclusive interview. Gentleman who I've got speaking with me today is a regular contributor on Pak Passion, former Pakistan international cricketer, played ODIs and tests for Pakistan, 11-year first-class career. He's worked for the ECB, he's worked for the PCB, he's worked at Lahore Qalandars, Lancashire. He's an ECB level 4 qualified coach, and he's currently the Germany head coach. Once again, I'm delighted to have Atiq Zaman as the guest today. Atiq bhai, assalamu alaikum. Hope you're doing well. वालेकुम सलाम शाहिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? Yeah, all good, thank you, Atiq bhai. Well, Atiq bhai, what can we say? I mean, it's been a disaster, hasn't it? What's gone wrong? We could talk all night about what's gone wrong, but what do you feel are the main areas that have caused this disastrous Champions Trophy for Pakistan? I think we could start with the proper basics, and we could start with the selection, and we could talk about it, and we could talk about it in a whole program regarding the selection, because you've been trying testing failures on regular basis. Okay, the failures are in the team, whether it's players, spinners, bowlers, batters, and the team is 70-80% full of failures. So when you got these kind of mentality, when you've got these kind of players who regularly fail for Pakistan and never delivered and never been match winners, or never mind match winner, but they never had significant contribution in winning the game, you're never going to win the game. You can't rely on one or two batsmen, and you can't rely winning the tournament, progressing the tournament, because you've got one or two good players. I think the team become a very average side, very predictive. If you start from fast bowling, you don't see any threats with the new ball. You don't see any threats with an old ball. It's a completely joke, to be honest. And then I'm very disappointed than Pakistan 50-over team performances like that at the minute. I think, bhai, let's just analyze what you've some of the points you've made there. Are the players not good enough that were selected, or is it a case of they are good enough, but they're just not performing to the level that they should be? I think you got to be good enough to performing on that level. You cannot just not. You can't just not perform on that level unless you've been performing in previously. You tell me one player who was a match winner in Pakistan team. Just take Babar and Rizwan out of occasion, and obviously they've done well for Pakistan previously. But even though Babar's performance has absolutely declined, you see Virat Kohli having a match-winning inning, and we're still waiting for Babar to have one inning. How many games you're going to give him? How many games you're going to wait for him to come and deliver? It doesn't look like he's going to deliver. He become a 20, 30-run player. And when he score 50, either 80 balls or 90 balls, where the strike rate is so low, and then you blame other players who's around him. So, if you want to get best out of the Babar should have players like with a higher strike rate around him. We had only one person, which is Fakhar Zaman, and then we've got no one. Fortunately, Khushdil Shah performed okay, because I don't see the justification of his selection as well. I don't know on what base he has been selected as an all-rounder who can bowl, what his domestic performance as an all-rounder. And if you had to select an all-rounder, I might as well go with Shadab Khan and Mohammad Nawaz as well, because they actually used to contribute something when they used to play. If not in batting, in bowling, if it's not in bowling, in fielding. But a player like Fahim Ashraf, Khushdil Shah, and even Usman Khan, what's Usman Khan in team for? If he's a backup opening batsman, why Imamullah came in and played straight away the game, and Usman Khan still hasn't got a chance? So, you have not playing those players who are in bench, and then it tells you that you've got no confidence in the bench. You've got only you only believe in one or two players who will come. Either Shaheen Afridi will come and deliver, or Haris Rauf will come and deliver, or Babar or Rizwan will deliver. So Pakistan teams become so predictive now. And for T20, okay, it's okay for one or two players to turn up and win the game for the team. But for 50-over cricket, you've got to have more than 2 or 3 players
in any team who can go win the game for the country, and unfortunately we haven't got it. So I was listening to Shoaib Akhtar the other day, and I 100% agree when he said you need a skill to deliver. Then I don't think these guys has got the skill. So I'm starting to doubt now. I think it's time for a change, a time for a big change. I think we need to start developing some youngsters and giving them chances. So in next 2-3 years time, they can become performers or match winners for Pakistan. But at the minute, I don't see any match winner in Pakistan team. It would take a brave call to do this, but would you drop Babar Azam from the Pakistan one-day anti-20 teams? Sajid, tell me what is the reason not to drop in him now? What was the reason? Give me one reason where I would come down and say, no, Baba should be in the team. We've been backing Baba up for months, for years maybe, and he's not been delivering. And Virat Kohli won the game himself. So the world-class player win the matches on consistent basis. Baba has not been doing it, and I don't know how long he needs. I don't know what the betting coach is doing about it. I think I've not seen any betting planning whatsoever. I don't see batsmen go there. They've got any plan at all. So I'm not just gonna blame the batters. I'm also gonna blame the support staff, especially the betting coach. What you've been doing and getting Babar into the form, and how he's gonna come? How he's gonna overcome? I don't think he's gonna overcome unless he goes and play domestic cricket on regular basis and start scoring some runs in domestic cricket and come back in Pakistan team. We're not gonna play because your name was Babar Azam and then you used to perform, but you're not doing it anymore. There must be some sort of a benchmark for him now. Whether if he doesn't perform, give him a rest and get somebody else. Where is Irfan Khan Niazi gone? He's a top order batsman, and then you've been playing him number 6, number 7, and all of a sudden he's not even in the squad. Why Usman Khan has not been given a chance? If he's not good enough, why is he's in the squad? So there are a lot of things. Selection, obviously selecting the team on the first place, and then selecting the team during the competition phase. I don't think Pakistan has got any competition at all. We are the only team, we are the host team who's playing with one spinner. I think it doesn't make sense to have one spinner in the squad. And I was just going to say, on the point of selection there, you've been in the system, you've coached in the system, you've played, so you know this system inside out, Pakistan cricket. I mean, people say the Sifarish and forced selections, they're forced upon the selectors. You've got to pick this player from outside influences. People have been saying this for a long time. Is it true or not? When I joined PCB team, my first task was they made me, because high performance coaches become the selector of the Pakistan domestic under 19 teams. So I have been made the selector of Punjab because I originally from Karachi. So to eliminate the conflict of interest in Sindh, they made me a selector, chief selector of Punjab. You would not believe how many phone calls I have taken in those period of time. The phone calls from former legends of Pakistan cricket, current players of Pakistan cricket, commissioners, DSPs, collectors, and all sort. And imagine that for under 19, on under 19 cricket, there are so many Sifarish was coming in there. How much Sifarish was going to come when it's about when you select the Pakistan national team? I think we have got a Sifarish culture, and it will stay like this, because when somebody's on that top rank comes from Sifarish, he's going to promote Sifarish. That's why you need to bring every person on top level, on leadership level, who actually deserve or qualify to be there. Once you bring somebody on merit, he promotes merit. It promotes, the fairness in the team, in the selection, and all that. And when you select the team on the basis of merit and performances, you get better results. It's as simple as it is. That's what we do. I'm involved with England selection setup for last 5 years, or last 4 years, sorry. And then the process we go through it about one player, never mind whole team, it's a very long process. And we see everything. We don't just see the performances. We see their attitude. We see their resilience. We've got scouting system who watches the game, who watches special players, and
selective group of players, keep them eye on them, don't watch them just once, watch them numerous occasions, make their reports objectively and subjectively, and then after that we debate about those players in the scouting meeting before selection, and then we recommend them to the selection committee, and it's up to the selection committee and the captain and the coach to pick those up. But most of the time they really trust our recommendation and go with it, and then that's how we select the team. In Pakistan, it's like selection committee. One is umpire, one is data analyst who has not even played cricket in his own life. I don't know whether he has ever played club cricket or not. He would understand the pressure of playing cricket. I don't think he would. If you don't understand the pressure of playing cricket, you won't be able to make a right selection. In EC scouting system, we've got for national team, for England men's team, we've got all the test players who played in international cricket for other England. I was there. I played for Pakistan, and we've got Marcus Trescothick, Jonathan Trott, Chris Reed, and all that. They all play test cricket. And then when they see the player, they see all those kind of the details in the players, how resilient they are. You know, what's their attitude like, what's their behavior is like when they enter to the rope, how confident they look. So these kind of details we give it to the selectors, and that becomes a very reliable report, and then it becomes life easy for the selectors to pick the team up on the basis of those reports. But in Pakistan, it's coach's eye. I've seen it. Oh, changa aega ji. Oh, anu le lo ji. Oh, anu le lo. I would ये करेगा परफॉर्मेंस. तो इस तरह तो चल रहा होता है पाकिस्तान में. अब ये चीजें मैं बता रहा हूँ, देखें, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है. आपको सिर्फ ये करना है कि आप सिर्फ मेरिट पे बंदे लाके रखें लीडरशिप पोजीशन पे, वेदर वो सिलेक्टर्स हों या कोचेस हों या जो भी हों या एडमिनिस्ट्रेशन पे हों. जब वो उनको पता होगा, उनको एक्सपीरियंस होगा उस काम करने का, और तो उनका काम बहुत आसान हो जाएगा. मैं सिर्फ डोमेस्टिक की परफॉर्मर को खिलाने पे भी नहीं अग्री करता, क्योंकि डोमेस्टिक का लेवल बहुत खराब है पाकिस्तान का. डोमेस्टिक में 1000 रन करना कोई बड़ी बात नहीं है किसी अच्छे प्लेयर के लिए, मगर क्या वो 1000 रन जो प्लेयर कर रहा है या 700-800 रन बना रहा है, कि उसके 1000 रन में से क्या 4 से 5 मैच विनिंग इनिंग्स थी या नहीं थी, ये आपको देखना पड़ेगा कि उसने किस सिचुएशन पे, किस टीम के खिलाफ, किस एनवायरनमेंट में रन किया. और जब तक आप स्काउटिंग सिस्टम नहीं क्रिएट करेंगे, आपको इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगी, और आप सिर्फ स्टैट्स देख के टीम को खिला दिया करेंगे. स्टैट्स से टीम थोड़ी बनती है. हाँ, स्टैट्स इंपॉर्टेंट हैं, मगर स्टैट्स शुडंट बी द ओनली वे टू सेलेक्ट द टीम. आपको और चीजें देखनी पड़ेंगी. What next for Aqib Javed? From a coaching perspective, you've done coaching. He's the head coach, interim head coach, may I say, for this World Cup, for the Champions Trophy. Sorry. What do you make of his performance and his future now? I don't know, to be honest. मुझे मिक्स एंड मैच फीलिंग है. मैं आकिब जावेद को सारा ब्लेम नहीं दूंगा कि मतलब उन्हीं की वजह से सारा कुछ ये खराब हुआ है. ये उनके राउंड जो सिस्टम है, उनके राउंड जो बंदे हैं, ये भी मतलब उस काबिल नहीं है जिनको वहां पे होना चाहिए. काफी लड़के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, उसमें अच्छे लोग भी हैं. असद शफीक और अजहर अली हो गए, उन्होंने क्रिकेट खेली हुई, उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और वो बिल्कुल मेरिट पे क्रिकेट खेल कर आए हैं, तो वो मेरिट का कत्लेआम नहीं करेंगे. ये मैं इसकी आपको गारंटी देता हूँ कि जो मेरिट से आता है वो मेरिट का कत्लेआम नहीं करता. मगर आपने जो दूसरे साइड में रखे हुए हैं, उनको आपने किस बुनियाद पे रखा हुआ उस लेवल पे. देखें, सिलेक्शन कमेटी जब बनती है ना, तो वो उन प्लेयरों पे बनती है जिन्होंने कम से कम 200 300 फर्स्ट क्लास मैच खेले होते हैं और 40-50 टेस्ट मैचेस खेले होते हैं कम से कम, जिन्होंने मतलब इतने प्रेशर में रह के और सारी चीजें की होती हैं. जहां तक आके जावेद के फ्यूचर का काम है, मेरे हिसाब से अब मैं क्या बोल सकता हूँ. अब मुझे उनका रोल समझ में आना चाहिए कि वो पहले तो सेलेक्टर थे, ठीक है ना. सेलेक्टर के बाद उनको अथॉरिटी और मिली, फिर उनको इंटरम कोच बनाया. अब फ्यूचर में अगर उनको हेड कोच लेकर आना है, तो आप उनको फिर रन दें, फिर अच्छी रन दें, क्योंकि आप 1-2 सीरीज की परफॉर्मेंस से आप अगर हेड कोच को चेंज करते रहेंगे, तो पाकिस्तान में कभी भी स्टेबिलिटी आएगी नहीं. अगर आपने एक समझा है कि ठीक है आकिब जावेद अच्छे कोच हैं उनकी नजर में, तो आप उनको फिर रन दो. मगर रन देने के लिए आप उनको पूरी अथॉरिटी ना दो. आप उनके साथ जो स्टाफ रखते हो वो भी मेरिट पे आना चाहिए, दोस्ती यारी पे नहीं आना चाहिए. क्योंकि अगर आप उठा के देख लें सपोर्ट स्टाफ का ग्रुप, तो उसमें लोग हैं जो 15-15 20-20 साल से भी काम किया है, मगर उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, मगर वो फिर भी हैं टीम के अंदर. क्या है, और थ्रो अच्छी कर लेते हैं भाई, घंटों बारी करा लेते हैं. लड़के खुश होते हैं कि उनको 1-1 घंटे की ना बैटिंग करा देता है बंदा. देखें, इस बेसिस पे नहीं होती आपके पास. आप मुझे पावर रेटिंग बताओ, किस तरह आपने हमारे प्लेयरों की परफॉर्मेंस को इनहांस करना है.
आपने देखा पावर रेटिंग का कैंप लगा हुआ था पाकिस्तान में, इससे ज्यादा एवरेज कैंप मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैंने एक भी वीडियो में कोई मैंने ऐसी चीज नहीं देखी जिससे मैं एज अ कोच कुछ सीख सकूं। ठीक है ना, अगर मैं इस काबिल नहीं समझता उस वीडियो को कि मैं उससे कुछ ना सीख सकूं, और तो इमेजिन करें कि उसमें प्लेयर कैसे सीखेंगे। आजकल क्रिकेट मॉडर्न हो गई, आजकल ये थोड़ी है कि कोच खड़े होकर हाथ से थ्रो डाउन कर रहा है और उसको बोल रहा है इस तरह करोगे तो सिंगल है, इस तरह करोगे तो छक्का है। ऐसा नहीं होता जी। आपने बायोमैकेनिक्स बतानी होती है कि आपको पावर जनरेशन होती किस तरह है, कौन कौन सी बॉडी का हिस्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको जो गोल्फ खेल रहे होते हैं तो जितने भी दुनिया के बेहतरीन पावर हिटर्स हैं वो गोल्फ के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो वो गोल्फ किसी वजह से खेलते हैं क्योंकि गोल्फ बड़ा ही टेक्निकल गेम है। अगर आप उसकी टेक्निक को फॉलो नहीं करोगे आपसे लंबी हिट नहीं लगेगी, गोल्फ रेंज हिट नहीं होगी गोल्फ में। तो उसकी टेक्निक को क्रिकेट में इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे शोल्डर, फ्रंट शोल्डर को बिल्कुल नीचे गिरा के बैकलिफ्ट को हाई करके फिर हिप की थ्रू पावर जनरेट की जाती है। आप अपने कैंप में यार सिखा रहे हो कुछ और सिखा रहे हो, आपके पास टूल्स ही नहीं है लड़कों को ना, लड़कों को आपने अच्छा करने के आपके पास टूल्स ही नहीं है। मैंने काफी फॉलो करता हूँ मैं पीसीबी को, मगर मैं जब वो कैंप देख रहा था तो मुझे तो कुछ चीज ही नजर नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पीसी का जब पैसा है वो पैसा को बस बहा देना है। यार आप अगर पैसा खर्च कर रहे हो, ये आवाम का पैसा है, अगर आप लगा रहे हो अपने हाई परफॉर्मेंस पे, तो हाई परफॉर्मेंस लेवल की कोचिंग होनी चाहिए, एवरेज लेवल की कोचिंग नहीं होनी चाहिए। और जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा नाम है तो वो छक्के मारता था तो उसको ये आइडिया है कि दूसरों को भी उस तरह छक्के मारना कैसे सिखाना चाहिए। अतीक पाकिस्तान में भाई बहुत बड़े बड़े जी लेजेंड है साजिद, जी साजिद, बहुत बड़े बड़े लेजेंड है पाकिस्तान में, हम्म, मगर उनको अपनी टेक्निक के बारे में भी खुद नहीं पता कि वो किस तरह छक्के मारते थे। वो नेचुरली टैलेंटेड थे तो वो कहाँ से सिखाएंगे जब उनको अपने बारे में नहीं पता, जब उनको एलीट प्लेयर की मूवमेंट स्किल का ही नहीं पता कि कैसे होती है छक्के मारने के लिए, वो कैसे सिखाएंगे। इट्स अनबिलीवेबल। अतीक भाई लास्ट 2 पॉइंट्स। फर्स्टली, ये जो पाकिस्तान की स्टाइल ऑफ प्ले है, काफी selfish, self-centered, based on their own average rankings. काफी accusations आई है from journalists, from the fans, from critics also, के too many of the Pakistan players are playing for themselves. ये right है या is it unfair criticism? नहीं देखें, देखने से तो ऐसे ही लगता है ना, देखने से ऐसे ही लगता है कि अगर आप 80 बॉलों में 50 रन बना रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा होगा आपने इंग्लैंड के खिलाफ, पाकिस्तान का भी 350 पे 350 रन करता। एक दफा मेरे ख्याल से किए हैं 300 का चेस किया अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बस वो भी मतलब ड्यू फैक्टर आया था उसमें, तो उसमें एडवांटेज मिल गया था तो हो गया। वरना तो पाकिस्तान कहाँ 300 पे 300 रन बनाता है। 350 पे ऑस्ट्रेलिया ने बनाया। अगर पाकिस्तान की टीम होती तो वो यही होता कि 100-150 रन से मैच हारते। कुछ कुछ प्लेयर्स परफॉर्मेंस करते अपनी, 70 बॉलों पे 80 बना देते, 70 बॉलों पे, ओ सॉरी, 80 बॉलों पे 70 बना देते, या 100 बॉलें खेल के 80 रन बना देते। तो इस तरह करते और अपनी परफॉर्मेंस करते, अपना मैच पक्का कर लेते। मगर देखें, ये चीजें सोचनी चाहिए। पाकिस्तान में अब जो भी सिलेक्शन में बैठा हुआ है और हेड कोच हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए नाम से। जो पुरानी परफॉर्मेंस थी सर, वो पुरानी हिस्ट्री हो गई है। अब जो करंट वर्ल्ड में रह रहा है उसकी करंट फॉर्म क्या है और करंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, उस बेस पे टीम को सेलेक्ट करें। अब नाम को छोड़ दें। इन नामों ने कुछ नहीं किया। हमारे बड़े नामों ने ऑस्ट्रेलिया में जाके मैन ऑफ द सीरीज नहीं जमा की। हमारे बड़े नामों ने इंग्लैंड में जाके सीरीज हराई और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं की। हम लोग एवरेज परफॉर्मेंस करते हैं यूएई में, अबू धाबी में, अपने अपने मुल्क में परफॉर्मेंस करके सेंचुरियां बना बना के हम लोग हैं। विराट कोहली की 50 ओडीआई सेंचुरी हो गई है भाई, 50 ओडीआई सेंचुरी। और उसमें से मैं होप करता हूँ कि 40 प्लस जो होंगी वो मैच विनिंग थी। तो आपको उस तरह का प्लेयर बनने के लिए आपको उस लेवल का माइंडसेट भी होना चाहिए, उस लेवल की मेंटेलिटी होनी चाहिए जो हमारे प्लेयर्स में नहीं है। हमारे प्लेयर्स अपने थोड़ा सा परफॉर्मेंस करते हैं, आंखें सर पे रख लेते हैं क्योंकि एजुकेशन का फुकदान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ कि सब में पहले पाकिस्तान को एक पर्सनल डेवलपमेंट प्लेयर का पर्सनल डेवलपमेंट मैनेजर होना चाहिए जो इनको तरीके सिखाए कि कम्युनिकेट किस तरह करना है, ड्रेसिंग किस तरह करनी है, आपने पब्लिक में बात किस तरह करनी है, आपने खाना क्या है, आपने रहना क्या है, आपने सोना कितने घंटे, आपने अपने आपको मॉनिटर किस तरह करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे मैनेज करना है। हम लोग इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ कहते हैं वो हमारे पास स्किल है भाई, किधर है स्किल। हमारे लड़कों से 70 मीटर की बाउंड्री क्रॉस नहीं होती, छक्का भी मारते हैं तो 75 मीटर का लगता है। इंग्लैंड प्लेयर के छक्के जा रहे होते हैं वो थर्ड और सेकंड टेयर में जा रहे होते हैं,
बड़े बड़े ग्राउंड्स में। बिग बैश के मैचेस देखें, वहां पे 80-80 90-90 मीटर की बाउंड्री है जिसमें लोगों ने छक्के मारे। हमारे बैट्समैन को बिग बैश में क्यों नहीं खिलाते? उनकी हिट ही नहीं पहुंचेगी बाउंड्री तक। सिर्फ बॉलर्स खेल रहे होते हैं हमारे पाकिस्तान के, उसामा मीर या हारिस रऊफ या जो भी है। किसी बैट्समैन का नाम बताने जो खेला हो जाके बिग बैश में, क्योंकि पहुंचेगी नहीं उनकी उनकी हिट। तो हमारा स्किल का लेवल बहुत कम हो गया है, और उसकी वजह भी यही कि हमारे जो हाई परफॉर्मेंस कोचेज ही नहीं है हमारे पास जो उस लेवल को इम्प्रूव कराएं। आप जूलियन वुड की देखें वीडियो उठा के, और आप अभी जो पाकिस्तान में पावर रेटिंग का कैम लगा आप उसको देखें, जमीन आसमान का आपको फर्क नजर आएगा। और अतीक भाई, फाइनल पॉइंट, fans काफी disheartened हुए हैं. This is like a low point in Pakistan cricket. Last जो 6 months, 9 months to Gallo, it's been one disappointment after the other for Pakistan cricket fans. आपको like where do you see Pakistan cricket heading now, Ateek भाई? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट अभी तो अपने डिक्लाइन पे है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में। टेस्ट क्रिकेट ठीक है, हम इंग्लैंड से विकेटें बना के 2 मैचेस जीत गए, मगर उसके बाद हम हारे भी हैं। साउथ अफ्रीका से 1 मैच जीत के 1 मैच हारे भी हैं। हम अपने जो खड्डा खोदा था हम उसमें भी गिर चुके हैं। तो ये दिस इज़ नॉट द वे टू मूव फॉरवर्ड। आपको चेंजेस लानी पड़ेंगी। आप कंप्लीटली नई टीम बनाएं, आप नाम को हटाएं। जो टीम का इन्वायरमेंट ख़राब कर रहे हैं और मैच विनर्स भी नहीं है और टीम में खेले जा रहे हैं बहुत बढ़ के, आप उनको सबको फारिग करें। आप बोल्ड डिसीजन लें, आप कोचिंग स्टाफ टॉप क्वालिटी रखें, आप उस हाई परफॉर्मेंस का जो सेंटर एंड सी है उसमें हाई क्वालिटी स्टाफ रखें। लाहौर की, मुल्तान की एकेडमीज़ और ये फैसलाबाद की एकेडमीज़ को कंटिन्यूसली यूज़ करें और वहाँ पे टॉप क्लास कोचेस बिठाएं। भाई मैं आने को तैयार हूँ, मैं आता हूँ आपके पास। अगर आप मुझे बुलाएं एकेडमी में काम करना है तो मैं आके करके जाऊंगा। अगर आपके पास कोचेस का फुकदान है तो मैं भी आने के लिए तैयार हूँ, मैं कर लूंगा काम आप पे। अगर मगर आप बने तो इस तरह कि आप फेयर वाले जो एजुकेटेड लोग हैं और एक्सपीरियंस लोग हैं, आप उनको बुलाने वाले बने। आपको काफ़ी लोग मिलेंगे, अपने लोग भी काफ़ी हैं, बाहर के लोग भी काफ़ी हैं। आप उनको बुला के आप अच्छे कोचेस देखें। जब तक आप फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, देखें जब आप कोई कड़ी बना रहे हैं या कुछ भी खाना बना रहे हैं ना, जब उसमें अगर आप अच्छी और खालिश चीजें नहीं डालेंगे ना तो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा उसका। अगर आप 2 नंबर चीजें डालेंगे तो 2 नंबर ही टेस्ट आएगा उसका, आपको वो स्वाद नहीं आएगा। तो आपको स्वाद अगर लेना है और आपको फायदा उठाना है, आपके पास देखें अभी भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, मगर उस टैलेंट को ग्रूम नहीं किया जा रहा सही तरीके से। आपने पैसा जहां पे लगाना है वहां पैसा नहीं लगा रहे, और आप पैसा आपने जाया किया है। आप जो इतनी हैवी हैवी सैलरी दे रहे हैं ना जिन लोगों को सिर्फ बातें करने के लिए, वो बहुत गलत है। आप प्रैक्टिकली काम करवाएं उनसे, आप उनको बोले प्रैक्टिकल आके काम करो। इतने बड़े बड़े नाम हैं जिनको इतने सालों का कोचिंग का एक्सपीरियंस है, अगर वो पाकिस्तान को प्लेयर नहीं दे सकते 1 या 2 अपनी टीम में से, तो दैट्स मीन दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब प्रॉपर्ली। मूव ऑन। एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हर चीज में। हर चीज का रिव्यू होना चाहिए कि यार हमारा सिस्टम का रिव्यू हो, हमारे कोचेस का रिव्यू हो, हमारे प्लेयर्स का रिव्यू हो, और ऑब्जेक्टिव रिव्यू होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा आप नहीं करेंगे, आप खिलाते रहेंगे। देखिए वही हम फिर खुशदिल साहब पे आ गए तो आप आसिफ अली को भी ले आते हैं, आप इफ्तिखार को भी ले आते हैं, आप नवाज को भी ले आते हैं, शदाब को भी ले आते हैं। वही टीम बना देते जो 4 साल 5 साल पहले थी। शायद कुछ कर देते वो लोग, क्योंकि एक्सपीरियंस था ना उनके पास। और उन्होंने किया, उनको हटा दिया आपने, आमिर को हटा दिया, और आप खुशदिल और फहीम को लेकर आए। मेरी समझ से बाहर है पाकिस्तान में। चले खुशदिल ने फिर भी परफॉर्मेंस कर दिया, मैं समझता हूँ वो इज नॉट अ बैड प्लेयर, मगर एक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक पाथवे होना चाहिए प्लेयर को पाकिस्तान टीम में आने का। पाकिस्तान टीम में आने का पाथवे बीपीएल नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान टीम में आने का पाथवे पाकिस्तान शाहीन होना चाहिए, जो इसमें लोग बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस करें अच्छी टीमों के खिलाफ, और फिर उससे आप टीम बनाए नेशनल टीम। मगर हमारा पाथवे नहीं है सिलेक्शन का। मुझे क्राइटेरिया आज तक समझ में नहीं आया कि सिलेक्शन होती कैसे। सिर्फ बस होती है सब्जेक्टिव व्यू पे सेलेक्टिंग कर लेते हैं, आप सेलेक्ट टीम कर लेते हैं और डाटा एनालिस्ट बिठाया हुआ है, वो आपको आके डिक्टेट कर रहा है कि भाई ऐप बंदा जो आएगा ना ऐप परफॉर्मेंस करेगा। भाई मुझे बताओ डाटा एनालिस्ट के कहने पे कौन सा प्लेयर परफॉर्मेंस करके चला गया पाकिस्तान में? इससे बेहतर यही आप ट्रेडिशनल सिलेक्शन कमेटी बनाओ जो जाती थी ग्राउंडों में मैच देखती थी, जो डर्टी वर्क करती थी, वो फिर भी अच्छी सिलेक्शन कमेटी हुआ करती थी। देखें थे हारून रशीद, तौसीफ अहमद और ये मैचेस में नजर आते थे। सलाउद्दीन सल्लू वगैरह ये लोग फर्स्ट क्लास के मैचेस जाके देखते थे, वहां पे लड़कों को देखते थे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ओवरव्यू देते थे, तो वो फिर भी ठीक परफॉर्मेंस होती थी उससे पाकिस्तान की। मगर अब तो बिल्कुल ही जीरो हो गई है, बिल्कुल जीरो। Ateek भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम पे. I really appreciate your views, always forthright and honest views, and inshallah we'll catch up in a short while once again. Thank you very much. नो प्रॉब्लम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।